Good morning, everyone. We are having an overview related to all the major schools in psychology, all the major concepts in psychology. Okay, so we have seen humanistic psychology, behavioral psychology, the school of structuralism, functionalism, psychoanalytical psychology. Okay, so the another, and you can say the recent one in the category is the cognitive psychology. Okay, so you remember all the things which we have studied in behavioristic psychology. So behaviorist or the behaviorism school, majorly the early behaviorism, John Watson, and the later behaviorism, which was given by Skinner, etc. So their main focus was upon the SR functioning. There will be one stimulus, and then there will be response generated because of that stimulus. Other than this, Skinner also focuses upon then how can we modify behavior by the process of reward, by the process of punishment. Okay, so this we have seen in the school of behaviorism. Now, cognitive psychology arises as a revolt against the school of behaviorism. They were not satisfied with the concept of only S and R responding. According to according to psychologists who believe in the concept of cognition, or you can say the major proponents of cognitive psychology believe that between this S and R, there are also some mental processes which is operating. Okay, so you can say this is the basic theme of this particular school. So there will be one S and the response. Between S and response, some mental operations are also taking place. That mental operation could be in the form of your thinking, in the form of your reasoning, decision making, perception, attention. Okay, so all these mental processes are also happening between this S and R. Okay, so this cognitive psychology or the cognitive school arises as a revolt against the school of behaviorism because they were not satisfied that only S and R is there. Only stimulus and response will be there. They were not satisfied with this. They were not satisfied this that only behavior needs to be modified. Okay, you know that behavioristic school does not talk anything about the cognition, thinking, reasoning, these kind of things. This particular school focuses upon all these processes. Okay, so this is a basic theme of the cognitive psychology, and you can see a lot of important names. For example, you will read about Jean Piaget, okay, who has also given the theory of cognitive development, different kind of stages, which we will see in development of human behavior chapter. Also, you can apply those concepts in education psychology. The second one is Noam Chomsky. He is also very famous. Okay, so Noam Chomsky has given a lot of research in the field of language development, LAD, language acquisition device, linguistic acquisition device. Sorry. Okay, so about Noam Chomsky also we will see in language and development chapter, language and communication. Okay, so this is a brief about the cognitive psychology. Now, previously also we tried to find out that what are the basic roots of every school, what are the basic roots of behaviorism, what are the basic roots of humanistic psychology. In the same way, we will try to analyze that what are the early roots or what are the antecedent forces behind the rise of cognitive psychology. Okay, and then we will see that what are they saying, what are their components, ये कहना क्या चाहते हैं उनके बारे में देखेंगे. ठीक है? Okay, so this is what we are going to see in this particular chapter. Okay, so the cognitive psychology, you know that I have told you these are the major domain of this particular field, particular school. Okay, so about the cognitive psychology, you can also see perception. What is perception? Perception means you are interpreting the stimuli, you are interpreting the senses which you are getting. So in perception also your cognition involves, which we will more elaborate in sensation and perception chapter. Okay, there are different theories of perception. Two theories are very famous: top-down processing and bottom-up processing. Okay, which were given by Gibson and Gregory respectively. Okay, so the next one is thinking and concept formation. It also involves the process of cognition. Whenever you think, whenever you form any kind of concept, then also you use your mental processes. Attention, there are so many kind of stimuli present in the environment, but you focus on particular event, particular stimuli, and that particular stimuli enter into your, like you can say sensory memory, short-term memory, long-term memory. So in attention also you are using your mental processes, you are using your cognition. In the same way, when you represent your knowledge, okay, you use your consciousness. Okay, for example, right now if you see your watch,
So you will see that it's 10 a.m. and you suddenly become aware that you need to rush to your to hospital or for any other kind of work. So you're keeping you aware. Okay, your mind becomes aware, your mind becomes active. So again, mental processes are playing their important role. In the same way, memory, you know that short term memory, long term memory, important of cognition is also there. Imagery, okay, for example, a sports person and military person use the concept of mental imagery. Okay, they visualize the images. Okay, for example, like a batsman is going to bat tomorrow, so he will visualize the image that how he will bat, how he will perform, how he will tackle the opposite bowler. So these are the images he already formed into his or her mind. So this is what imagery. Again, the process of cognition involving there. Okay, you are refocusing your attention, you are recollecting all your senses in the process of imagery. Okay, language, you know that language also involve the process of cognition. Okay, developmental psychology, Jean Piaget theory, sensory motor, pre-operational, okay, concrete operational, formal operational. So in developmental psychology also cognition is important. How a child develop cognitively. Okay, you know that cognitive development is also important for the child. Okay, so about this we will read how we determine the pattern. The latest field is artificial intelligence. Okay, AI also works like cognition. We use different process. Now AI is also working upon this. Okay, so AI also uses the process of reasoning, okay, thinking. You can see that like robots are coming. So they're also like an analogy with the human. So they're also using the process of cognition. So these are the various domains of cognitive psychology, and all these domains are there in our psychology syllabus also. For example, language and communication is a chapter. Development of human behavior is a chapter. Okay, artificial intelligence, you will see like recent trend in 21st century. Okay, perception, sensation, attention, perception is a chapter. Thinking and problem solving, sensation, attention, and perception. Okay, consciousness, we have already discussed a lot about this. Memory, okay, learning and memory chapter is there. Imagery is used in sports psychology. Okay, mental imagery, and in military psychology also. Okay, so in this way, cognitive psychology is very important to understand because it is linked with almost every chapter of paper 1 and paper 2. Okay, so these are the domains which we are going to cover in our particular syllabus. Okay, so now next is you know that I think the image is not clear right now. So two important names are there in cognitive psychology. The first one is Piaget and the second one is Noam Chomsky. Okay, Noam Chomsky. Now, Jean Piaget has given the theory of cognitive development for the child. They've also given a lot of theories for language development. Their concepts are heavily used in education psychology also. Okay, education psychology में भी इनके concept को काफी use किया जाता है. Same, Noam Chomsky theory is also very important. He has also given a lot of concept related to language formation, universal grammar, deep structure, surface structure. Okay, ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं. इनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, लेकिन हमें ये दो को मेजर फोकस करना होता है जो हम हमारे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई थिंक द कंप्लीट ओवरव्यू रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कूल इज ऑलरेडी क्लियर. नाउ we will see that how this particular school emerged. Okay, what are the antecedent forces that led to the emergence of cognitive psychology in the world? ठीक है, ये आया कैसे, इसका इमरजेंस कैसे हुआ? तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि हर एक स्कूल का इमरजेंस हुआ है ड्यू टू फिलोसफिकल. ठीक है, फिलोसफी थी साइकोलॉजी पहले, उन्होंने अपने कुछ कंसेप्ट बताए, उन्हीं पर रिलाय करते हुए हमने साइकोलॉजी को इमर्ज किया. तो वो जो एंटीसीडेंट फोर्सेस होते हैं, वो जो अर्ली रूट्स होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है. ऑल्दो दे विल नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली इनटू द पेपर, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड दोज रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने. जब तक साइकोलॉजी पूरी माइंड में घूमेगी नहीं, तब तक आप आंसर ठीक तरीके से लिख पाओगे नहीं. ठीक है, सो दोज अर्ली रूट्स टू अंडरस्टैंड देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दीज आर द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी और फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. The first one is the school of empirism. The second one is nativism, structuralism, cognitive behaviorism, okay, and Gestalt psychology. ठीक है, we will read Gestalt psychology separately also.
but Gestalt psychology is also an inspiration behind the rise of cognitive psychology. ठीक है, इसको अभी हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारा चैप्टर है, सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन चैप्टर है ये एक, तो वहां पर गेस्टल्ट साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे. अब अगर हम इसके अर्ली रूट्स की बात करें, the first early root was given by empirism. Okay, so mind it that these are the motivating forces. Okay, they have given certain concept which inspire cognitive psychology to emerge as a separate field. इन्होंने कुछ कंसेप्ट ऐसे बताए हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एम्पिरिज्म देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेम. द फर्स्ट वन इज जॉन लॉक. The second important name is George Berkeley. And the third important name is David Hume. Okay, so these are the 3 important names in the empirical school, okay, who inspire the cognitive psychology. The first one is John Locke. So about John Locke we have already studied. ठीक है, what John Locke had said that everything is related to experiences. So John Locke focuses upon 2 things. The first one is sensation, और जो सेकेंड चीज इन्होंने बोली थी वो थी रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन. इन्होंने क्या बताया कि हम एनवायरमेंट से सेंसेस को लेते हैं, ठीक है, उन सेंसेस को रिसीव करके हम रिफ्लेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को. ओके, सो वी आर गेनिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हमने इंफॉर्मेशन को लिया और फिर हमने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया. ठीक है, बताया. ओके, सो व्हेन वी आर रिफ्लेक्टिंग बैक द इंफॉर्मेशन देन वी आर यूजिंग सर्टेन कॉग्निशन लेवल. हम अपने कुछ सर्टेन माइंड एक्टिविटी का यूज करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. ओके, सो दीज 2 प्रोसेस ऑफ सेंसेशन रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, साइकोलॉजी में, और इनमें ही क्या हो रहा है, इनमें ही हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व हो रहा है. इन द सेम वे जॉर्ज बर्कली हैज आल्सो गिवन वन आइडियलिस्टिक थ्योरी. ठीक है, अब इन्होंने अपनी एक आइडियलिस्टिक थ्योरी दी थी. उसमें इन्होंने क्या बताया, आपको याद होगा हमने माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट एंटाइटी. माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट एंटाइटी, दोनों अलग अलग हैं. जॉर्ज बैकली इन हिज आइडियलिस्टिक थ्योरी मेंशंस दैट देयर इज ओनली माइंड और आइडियाज. सिर्फ माइंड होते हैं और आइडियाज होते हैं. दीज आइडियाज आर रिलेटेड विद ईच अदर विद सम काइंड ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, विद सम काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस. ठीक है, सो दे रिजेक्टेड द कांसेप्ट ऑफ माइंड बॉडी प्रॉब्लम, और उन्होंने आइडियाज के बारे में बात की कि क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है सब्जेक्ट मैटर के लिए, क्या है माइंड और आइडियाज. आप माइंड और आइडियाज को पढ़िए, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओनली माइंड एंड आइडियाज आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो इन फॉर्मिंग आइडियाज यू आर यूजिंग योर मेंटल प्रोसेस, हेंस मेंटल प्रोसेस शुड बी स्टडीड आल्सो. Okay, so what am I saying that these are the schools which inspire the cognitive psychology. इन्होंने डायरेक्टली कोई बात नहीं की, लेकिन इन लोगों ने इंस्पायर किया इन लोगों को. ठीक है, इन्होंने बोला कि आइडियाज को हमें समझना है तो मेंटल प्रोसेस को समझने वाली बात कॉग्निटिव वालों ने बोली. इन्होंने बोला कि सेंसेशन रिफ्लेक्शन हम एक्सपीरियंस से चीजों को लेते हैं. ठीक है, तो फिर वहां से एक आइडिया निकल के आया. ऐसे ही डेविड ह्यूम ने बोला कि हम चीजों को समझते हैं बाय एसोसिएटिंग देम, हम एसोसिएशन से चीजों को समझते हैं. ठीक है, ओके, एसोसिएट कर करके चीजों को समझते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल यू आर एसोसिएटिंग एनी मैथ्स प्रॉब्लम which you have already studied in your school. ठीक है, यू आर एसोसिएटिंग योर कंसेप्ट, पॉलिटी कंसेप्ट विद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. इकोनॉमी को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे हम कनेक्ट कर करके चीजों को पढ़ते हैं, एसोसिएट कर करके चीजों को पढ़ते हैं. और जब भी हम एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं तब हमारी मेंटल प्रोसेसेस उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, सो दीज आर द अर्ली रूट्स, दीज आर द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ द एम्पिरिकल स्कूल जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हैवी तरीके से इंस्पायर किया. द नेक्स्ट वन इज द स्कूल ऑफ नेटिविज्म. Now, in this school, the most important name is Immanuel Kant. ठीक है, आप फिलोसफी में भी इसके बारे में ही पढ़ेंगे या एथिक्स में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे. इमैनुअल कांत, ठीक है, इनका नाम बहुत फेमस है. नाउ व्हाट इमैनुअल कांत हैज सेड, ही फोकसेस अपॉन द इनेट पार्ट. ओके, इन्होंने क्या बोला
कि हमारी बॉडी के अंदर इन्नेट कुछ मैकेनिज्म होता है जिससे हम चीजों को समझते हैं. ही डज नॉट फोकस मेजरली अपॉन द एक्सपीरियंसेस. Okay, according to him, according to Immanuel Kant, everything is predisposed, everything is innate. Okay, so whatever mental functioning happening in our mind is innate. Okay, and by getting inspiration from Immanuel Kant, Noam Chomsky generate the concept of LED. जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने एलईडी का कंसेप्ट जनरेट किया. ठीक है, अब एलईडी का जो कंसेप्ट था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की भी क्या बोलते थे कि इट्स अ एक्वायर्ड डिवाइस. ठीक है, ये आपके पहले इट्स अ प्री वायर्ड सिस्टम, ये आपके ब्रेन में पहले से ही प्री वायर्ड है. ओके, which is in analogy with the concept of nativism given by Immanuel Kant. ठीक है, इन्होंने भी नेटिविस्टिक थ्योरी, नेटिव एवरीथिंग इज इनेट पे फोकस ज्यादा करते थे ये. ठीक है, सो इन दिस वे नेटिविज्म आल्सो इंस्पायर द स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी दी. ठीक है, द सेम वे यू कैन से स्ट्रक्चरलिज्म. हु वर द इंपॉर्टेंट नेम्स? द फर्स्ट वन इज विल्हेम वुंड इज द इंपॉर्टेंट नेम, एंड हिज स्टूडेंट टेचनर इज एन इंपॉर्टेंट नेम. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लोग थे. अब इन्होंने क्या बोला स्ट्रक्चरलिज्म वालों में कि ब्रेक डाउन एवरीथिंग, ब्रेक डाउन द कॉन्शियसनेस. ठीक है, कि आप कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके पढ़ो. यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले कॉन्शियसनेस पे फोकस करते थे. ओके, कॉन्शियसनेस मींस योर अवेयरनेस, हाउ मच यू आर अवेयर, एंड यू कैन सी वन ऑफ द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज कॉन्शियसनेस इज आल्सो. ठीक है, ये भी एक डोमेन है ना, हम अवेयर हैं अपने आप से. ठीक है, तो उसमें भी तो हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व हो रहा है. Okay, for example, right now it's 10:30. So when you see the watch, you become aware. You use your cognition and you remember some urgent task. Then you need to rush to your hospital. You need to rush to your friend. So you are using your cognition. Okay, so consciousness बहुत important है. ये स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बोला था और इस पे इन्होंने भी फोकस किया. Other than this, structuralism is also talk about one method which is known as introspection. ठीक है, इन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में बताया था. नाउ ऑल्दो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर नॉट कन्विंस्ड विद द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, बट दे वर कन्विंस्ड विद द फैक्ट दैट देयर शुड बी समथिंग विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर. ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें. ओके, तो ये इंट्रोस्पेक्शन से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन का मोटिव था उससे सेटिस्फाइड थे. ओके, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिलीव करते थे कि देयर शुड बी सर्टेन मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन मेजर. ठीक है, हम मेजर कर सकें कॉग्निशन को, अपनी थिंकिंग को, ऐसा कुछ होना चाहिए. ठीक है ना. सो इन दिस वे स्ट्रक्चरलिज्म आल्सो इंस्पायर द राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है, तो तीन हमने देखे. द फर्स्ट वन इज एम्पिरिज्म. थ्री इंपॉर्टेंट नेम इज देयर: जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कली एंड डेविड ह्यूम. जॉन लॉक सेंसेशन रिफ्लेक्शन, बर्कली आइडियलिस्टिक थ्योरी, माइंड और आइडियाज होते हैं सिर्फ. डेविड ह्यूम हैज गिवन द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, नेटिविज्म इंपॉर्टेंट नेम इज इमैनुअल कांत, इन्होंने बोला एवरीथिंग इज इनेट. ठीक है, एंड द स्ट्रक्चरलिज्म द इंपॉर्टेंट नेम इज विल्हेम वुंड एंड टेचनर. इनके बारे में भी हम पूरा जो उनका स्कूल था, जो उनकी स्टडी थी, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म आल्सो इंस्पायर, इन्होंने भी इसको इंस्पायर किया. अब कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म ने कैसे इंस्पायर किया? ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म में एक इंपॉर्टेंट नेम आता है ईसी टोलमैन. ठीक है, नाउ ईसी टोलमैन said that cognition is very important between this S and R. जो S और R होता है, इसके बीच में कॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ईसी टोलमैन ने अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हम लर्निंग चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मेज एक्सपेरिमेंट. इनका एक मेज एक्सपेरिमेंट था. अब इन्होंने क्या बोला, whenever you are learning something, so whenever you are learning something, then learning is not only limited to reward and punishment. When you learn something, expectations also play an important role. Emotions also play a very important role. Motives also play a very important role. So according to E.C. Tolman, between S and R, between generating any behavior in any learning process, cognitive element is very important. ठीक है, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव मैप का कंसेप्ट. ठीक है, कि जब भी हम कहीं पर जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, तो हम अपने माइंड में एक कॉग्निटिव मैप क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमने घर से बाहर निकले, आपने घर के बाहर निकलते देखा कि देयर इज वन स्टेशनरी शॉप. ओके, देयर इज वन लाइक फ्लावर शॉप. सो यू ऑलरेडी फॉर्म अ कॉग्निटिव मैप इन योर माइंड.
Now nobody is asking you on daily basis that where is flower shop, okay, where is barber shop, where is the stationery shop, but you already form a cognitive map of all those shop. नाउ whenever someone asks you कि वो शॉप कहां पर है, वो कहां पर है, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ कि मैंने वो शॉप देखी थी, वहां पर है. लेकिन डेली बेसिस पे आपको क्यों पूछ नहीं रहा है. ठीक है, तो आपने ऑलरेडी अपने माइंड में एक कॉग्निटिव मैप का फॉर्म कर लिया है और उस लर्निंग को आपने जब प्रोड्यूस किया जब उसकी आवश्यकता थी. ठीक है, तो जो कॉग्निटिव मैप आपने फॉर्म किया, जो लर्निंग आपको हुई कि दिस फ्लावर शॉप इज देयर, दिस स्टेशनरी शॉप इज देयर, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट एज सेट बाय बिहेवियरिस्ट स्कूल. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर कॉग्निशन. आपने कॉग्निटिव मैप फॉर्म कर दिया है, तो आपके अंदर एक लर्निंग ऑलरेडी है, आपने अभी तक प्रोड्यूस की नहीं क्योंकि आपने किसी से पूछा नहीं. और व्हेनेवर यू आर गिवन अ चांस, आपने उस लर्निंग को प्रोड्यूस किया. ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, जो हम अभी आने वाले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे और इनका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे. ठीक है, सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर स्कूल आल्सो दिस cognitive behaviorism, the important name is E.C. Tolman, also inspire the rise of cognitive psychology. The last one is Gestalt psychology. Okay, now what is the basic theme of Gestalt psychology? Gestalt means, इसका जो मतलब होता है Gestalt का, इसका मतलब होता है complete, whole. Okay, configuration. ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि whole is better than its part. किसी भी चीज को समझना है तो उसको holistic तरीके से पढ़ो. ठीक है, होल इज बेटर देन इट्स पार्ट. ओके, सो इन्होंने होल का कंसेप्ट दिया कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें पूरी तरीके से उसका कंप्लीट प्रोसेस समझनी पड़ेगी. और होलिस्टिक तरीके से आप तभी समझ सकते हो जब आप अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करो, जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करो. ठीक है, जब आप अपनी अटेंशन का इस्तेमाल करोगे, परसेप्शन का इस्तेमाल करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ होलिस्टिक मैनर. Okay, so for example, like whenever you also realize that whenever you will get an overview about anything, then it is easier for you to understand the concept. जब हमको किसी भी चीज का एक ओवरव्यू मिल जाता है ना, तो उसको समझना बहुत आसान होता है. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर है, आपने इंडियन पॉलिटी या जीएस कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो अगर आपको किसी ने ओवरव्यू दे दिया कि हम इसमें ऐसा ऐसा पढ़ने वाले हैं, तो आपका एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, आपको समझने में आसानी होगी. जैसे अभी हम ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है, अब आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको मजा आएगा आगे के चैप्टर पढ़ने में. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाया और अब जाकर हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे. पेपर 1 का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4. ओके, नाउ वी विल अप्रोच द पार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट हॉलिस्टिक मैनर. हमने एक हॉलिस्टिक व्यू ले लिया, अब हम उनके पार्ट को पढ़ेंगे. सो दिस इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. ये हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होता है. ओके, सो इन दिस वे दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम जो निकल के आते हैं और जो बताते हैं कि कैसे एंड व्हाई कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एंड दे लेड टू द इमर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल. ओके, तो आपको मेन थीम इसकी समझनी है. मेन थीम इसकी क्या है? पहला काम क्या था कि एक रिवॉल्ट की तरह आया था अगेंस्ट बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म बोलते थे कि एस और आर होगा, इन्होंने बोला कि एस और आर के बीच में हमारी कुछ मेंटल प्रोसेस भी होंगी. ठीक है, ओके, सो ये हमारे अल्यूड्स हो गए. इसके बाद जब ये इमर्ज हो जाता है, इमर्ज होने के बाद इसके बेसिकली 3 फीचर्स निकल के आते हैं. ओके, सो दे आर बेसिकली 3 फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल. ये आप कह सकते हैं कि इसके फीचर्स है. द फर्स्ट वन इज न्यू स्ट्रक्चरलिज्म, ये हमारा पहला हो जाएगा. द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड द थर्ड वन इज न्यू मेंटलिज्म. ठीक है, पहला आप देखेंगे द न्यू स्ट्रक्चरलिज्म. नाउ दिस न्यू स्ट्रक्चरलिज्म और जो 3 फीचर थे, these 3 features are given by लीचले. ठीक है, इन्होंने ये 3 फीचर्स दिए थे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के 3 फीचर्स, 3 पैराडाइम या 3 तरीके की वैरायटी होती है, आप ऐसे कह सकते हैं. द फर्स्ट वन इज न्यू स्ट्रक्चरलिज्म, द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ओके, एंड द थर्ड वन इज न्यू मेंटलिज्म. ठीक है, तो इस तरीके से करके इसके 3 वैरायटी या 3 पैराडाइम होते हैं. अब पहला देखिए, द न्यू स्ट्रक्चरलिज्म. माइंडेड दैट दिस वर्ड हैज नो रिलेशन, नथिंग टू डू विद द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. उससे कुछ लेना देना नहीं है. ये अलग से कुछ लोग होते हैं, इनको हमने न्यू स्ट्रक्चरलिज्म की फील्ड में डाला है. दीज आर द पीपल हु मेजरली फोकसेस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कॉग्निशन. ये वो लोग हैं जो लैंग्वेज और कॉग्निशन पे ज्यादा फोकस करते हैं. ठीक है,
दीज आर द पीपल विच फोकसेस मेजरली अपॉन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, है ना। अब न्यू स्ट्रक्चरिज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट नाम निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन इज जीन पियाजे एंड द सेकंड वन इज नॉम चॉम्स्की। Okay, so these are the two important names in language and cognition. The first one is Jean Piaget and Noam Chomsky. Okay, both have given their theories. इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है. For example, Jean Piaget, he was majorly a Swiss psychologist. Initially he was a zoologist. बाद में ये psychologist बन जाते हैं, ठीक है. And he has given his theory. इन्होंने अपनी खुद की एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने बताया कि एक चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। एक्चुअली पॉइंट ये था कि जीन पियाजे जो थे वो इंटेलिजेंट टेस्ट पे काम करते थे। आपको याद होगा बच्चों का टेस्ट करने के लिए आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है। तो एक अभी आप पढ़ेंगे या आपने अगर पढ़ रखा होगा तो बिनेट एक अल्फ्रेड बिनेट थे, उन्होंने आईक्यू टेस्ट के बारे में काफी कुछ बताया था जो हम इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिनेट की जो लेबोरेटरी थी वहां पर ये इंटेलिजेंट टेस्ट पे काम कर रहे थे। तो वहां से इन्होंने चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया एंड ही हैज गिवन हिज ओन थ्योरी ऑफ चाइल्ड, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अपनी खुद की थ्योरी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ प्रोसेस बताई, जैसे अ चाइल्ड अंडरगॉन विद 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हर एक चाइल्ड में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। हर एक स्टेज में चाइल्ड कुछ सीखेगा और इन्होंने मेजरली फोकस किया कॉग्निशन पर। इन्होंने क्या बोला कि 2 तरीके की प्रोसेस होती हैं जिससे हम नई इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ओके, या फिर जो एनवायरनमेंट में जो भी कुछ मौजूद है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन and the second process is accommodation. Assimilation and accommodation, ये हमारी 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इनका क्या कहना था कि हर एक इंडिविजुअल वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें सबको शांति में रहना है, एवरीवन वांट टू रिमेन इन पीस। जब भी आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है ना जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो आपके माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और उस डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में आप नहीं रह सकते। आपको वापस से इक्विलिब्रियम में आना है, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम में आने के लिए आप एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन एसिमिलेशन व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर न्यू इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू, सो यू ऑलरेडी लुक इनटू योर ओन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन कि आप इसको और कितना एसिमिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन समझ लिए, अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट होंगे तो आप उनको एसिमुलेट कर लोगे, ठीक है। दिस इज एसिमुलेशन, ओके। हाउ मच नॉलेज यू कैन एक्वायर विद ऑलरेडी हैविंग इंफॉर्मेशन, विद ऑलरेडी हैविंग आइडियाज। द सेकंड वन इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में आप क्या करते हो, एकोमोडेट करते हैं ना, हम किसी को अपने पास में बिठा लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके पास नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप एकोमोडेट करोगे अपने अंदर, ठीक है। वो एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्कोमोडेशन, ये हमारा एक्कोमोडेशन होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दीस 2 प्रोसेस, एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन, एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ये जो 2 प्रोसेस होती हैं ये हर एक स्टेज में होती है। ये प्रोसेस सेंसरी मोटर में भी होगी, ये प्रोसेस प्री ऑपरेशनल में भी होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल में भी होगी और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में भी होगी। सॉरी, ये मैं भूल गया कि स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन में भी होगी। लेकिन इनके अलावा भी इन स्टेजेस में और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो अभी हम जब चैप्टर आएगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तब हम देखेंगे, ठीक है, ओके। द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम इज नॉम चॉम्स्की। ये हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम हो जाते हैं, ठीक है। अब नॉम चॉम्स्की क्या बात करते हैं, नॉम चॉम्स्की या नॉम चॉम्स्की जो भी आप इनको बोल लीजिए, ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने बिहेवियरिस्ट स्कूल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, ठीक है। अब जो बिहेवियरिस्ट थे मेजरली द नेम इज BF स्किनर, उनके ये पीछे पड़े हुए थे। अब BF स्किनर क्या बोलते थे कि एवरीथिंग वी गेन और वी लर्न इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। हम जो भी कुछ सीखते हैं वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखते हैं, ठीक है।
तो लैंग्वेज को भी हम सीखेंगे रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चे ने कोई भी एक सेंटेंस बोला, तुरंत उसके मदर या फादर ने उसको एक चॉकलेट दे दी, उसको शाबाशी दे दी। अब वो बच्चा उस लैंग्वेज को हमेशा रिपीट करेगा। वहीं बच्चे ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो माँ बाप उसको करेक्ट करेंगे, हो सकता है कि उसको पनिश भी कर दें, ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी दे सकते हैं, रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। तो उससे वो उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी लैंग्वेज को करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे बीएफ स्किनर बोलते थे। ओके, तो बीएफ स्किनर जो अभी हम पढ़ेंगे लर्निंग चैप्टर में, वो फोकस करते थे इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल पर, कि बच्चा इमिटेट कर करके, ठीक है, और माँ बाप उसको करेक्ट कराते रहते हैं, तो उससे लैंग्वेज को सीखता है। इमिटेट एंड करेक्शन मॉडल, इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल, ठीक है, ये हमारी बात होती है। लेकिन नॉम चॉम्स्की इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा इमिटेशन करेक्शन ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप सिर्फ सिंपल बिहेवियर को समझ सकते हो, ठीक है, इससे आप सिंपल प्रोसेस को समझ सकते हो। बट लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें कुछ और एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की बोलते थे कि बिहेवियर स्कूल ने सिर्फ ऊपर ऊपर का बता दिया कि आप कैसे सीख रहे हो, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर बता दिया। लैंग्वेज के जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में तो बताया ही नहीं, ठीक है। जैसे सर्टेन ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉमन इन एवरी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, नाउन होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके की बातें इन्होंने बताई। हम सेंटेंस को कैसे रिफॉर्म करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो इसलिए नॉम चॉम्स्की ने बताया कि दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने खुद की अपनी एक थ्योरी थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी। ओके, एंड ही हैज गिवन सर्टेन कंसेप्ट लाइक एलईडी, linguistic acquisition device, and other than this he also given the concept of universal grammar, transformational grammar, deep structure, surface structure, ठीक है। इन्होंने काफी अपनी बातें बताई which has a lot of significance in the field of education psychology, ठीक है। जीन पियाजे का भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी में। ओके, जीन पियाजे ने क्या बोला था कॉग्निटिव के बारे में? अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जीन पियाजे बोलते थे कि एक स्टेज के हिसाब से बच्चों का कॉग्निशन लेवल डेवलप होता है, ठीक है। आप देखता होगा आज के टाइम पर ऑनलाइन जब हम इतना हो गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी हम ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाते हैं, लेकिन उनको उस मीडियम से पढ़ाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉग्निशन लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ है। वो कब होगा? वो जब होगा जब वो आखिरी वाली स्टेज में चले जाएंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। अगर आप थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे को ही ऑनलाइन मीडियम दे दोगे तो वो उस इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सर्टेन कॉग्निशन लेवल अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा ही चॉम्स्की भी बोलते थे कि एक सर्टेन लेवल तक ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ओके, ठीक है, उसके बाद करना लैंग्वेज का डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लैंग्वेजेस बचपन में सीख जाओ तो आपको बहुत आसानी होगी, वही लैंग्वेज अगर आप अपने एडल्टहुड में सीखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बचपन में लैंग्वेज को सीखना ठीक रहता है, उसी को हम बोलते हैं सीपीएच या फिर क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, कि एक सर्टेन पीरियड तक लैंग्वेज डेवलपमेंट या चाइल्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड लैंग्वेज का डेवलपमेंट कराना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे जब हम जीन पियाजे और नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। सो तो ये हमारा पहली कैटेगरी के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आ जाइए मेमोरी चैप्टर पर। मेमोरी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे एबिंगॉस, एटकिंसन और शिफ्रिन, वो इस प्रोसेस पे काम करते हैं। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाले क्या बोलते हैं, इस टाइम तक क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर्स की डिस्कवरी होना शुरू हो गई। तो अब कॉग्निटिव को और कॉग्निशन को एनालॉगी करके पढ़ना शुरू कर दिया गया कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर में क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आती है। इन द सेम वे यू गेट सम इंफॉर्मेशन विथ योर सेंसेस, ओके, फिर आपके माइंड में कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड देन फिर उसका आउटपुट निकल के आएगा, ओके। सो दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेम इन एनालॉगस विद अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरीके से एक मैकेनिकल तरीके से हमने कॉग्निशन को समझने की कोशिश की, ओके। फॉर एग्जांपल सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। तो कोई भी आपका एक इनपुट होगा, ठीक है, ये क्या बोलते थे, कोई भी एक इनपुट होगा, कोई भी एक स्टिमुलाई आई, उस इनपुट को आपने क्या किया, उस इनपुट को आपने अपने रिसीव किया, पहले आपने रिसीव किया उसको, ठीक है, फिर उसमें आपने ट्रांसफॉर्म किया,
या आप रिसीविंग को डिटेक्शन ही बोल सकते हैं, आपने डिटेक्ट किया उसको, ट्रांसफॉर्म किया, आपने कुछ ऑपरेशंस लगाए उस पर, ठीक है, उसके बाद उसको डिकोड किया इंफॉर्मेशन को, डिकोड करने के बाद आप समझ गए, आपने अपना डिसीजन क्रिएट किया और फिर आपका ये आउटपुट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम मेमोरी में ही पढ़ेंगे। मेमोरी में भी क्या होता है, पहले आपकी सेंसरी मेमोरी आती है, उससे इंफॉर्मेशन आपके एसटीएम में जाएगी, एसटीएम से इंफॉर्मेशन आपकी एलटीएम में जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वापस से आप एसटीएम में ला सकते हो। एसटीएम से अगर आपको एलटीएम में रखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिहर्सल करनी पड़ेगी। सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में लेके जाना है तो आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी मेमोरी में। तो ये समवॉट एनालॉगस टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसा कंप्यूटर में होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को दिया, वहां पर उन्होंने उसको डिकोड किया, अलग अलग ऑपरेशंस लगाए और फिर एक आउटपुट निकल के आता है। दिस पर्टिकुलर पैराडाइम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी आल्सो गिव एमर्जेंस टू द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में भी यही होता है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड ब्रांच आती है, इसमें इंपॉर्टेंट नेम एटकिंसन, शिफ्रिन, एबंगॉस, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम निकल के आ जाते हैं, ठीक है। द थर्ड एंड लास्ट वन इज द न्यू मेंटलिज्म, ठीक है। ये हमारी थर्ड और लास्ट इसमें हो जाती है, न्यू मेंटलिज्म। अब ये क्या बोलते हैं, ये इमर्जिंग है, ये लेटेस्ट वाले लोग हैं, ठीक है। अब ये न्यू है, देखो न्यू लिखा हुआ है, न्यू मेंटलिज्म। तो ये क्या बात करते हैं, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सारी की सारी प्रोसेस काम कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। हम इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करके समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लिंक करके, ठीक है, एसोसिएशन करके, ओके, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं न्यू मेंटलिज्म वाले कि एसोसिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें एसोसिएशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या अभी कैसे होता है ये। तो इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो एसोसिएशन फोकस नहीं करना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हम एसोसिएट करके पढ़े इंफॉर्मेशन को, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे भी होती हैं जिनकी हम इमेज क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम उसको एसोसिएट कैसे करेंगे। जैसे आप उसी इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर सकते हो ना, जिसको लेकर आपके माइंड में एक थॉट आएगा तो आपने अपने थॉट को एसोसिएट कर लिया, ठीक है, आपने जोड़ लिया उनको और आपने फिर बता दिया अपना आउटपुट। लेकिन बहुत सारे थॉट तो इमेजलेस भी होते हैं, ठीक है। तो इमेजलेस थॉट को आप एसोसिएट करोगे कैसे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनका फोकस इस चीज पे था, इमेजलेस थॉट पर, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, तो क्या आप उसकी इमेज बनाते हैं अपने माइंड के अंदर, नहीं बनाते ना, तो वो एक इमेजलेस थॉट है, ठीक है। हम हमेशा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसकी इमेज नहीं बताते, उसकी इमेज नहीं बनाते। कभी कभी हमारे माइंड के अंदर इमेजलेस थॉट भी क्रिएट होते हैं जिनको एसोसिएशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यू मेंटलिज्म बोलता है, और इसका भी इमरजेंस एक्चुअली हुआ था, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, WURZBURG, वुल्सबर्ग स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। वुल्सबर्ग स्कूल ऑफ थॉट से ये पूरी की पूरी प्रोसेस निकल के आती थी। इन्होंने बोला था, ये भी अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थे। इन्होंने बोला था कि हमें ऐसी चीजों को पढ़ना है जो हमारी मेंटल प्रोसेस पे ध्यान देती हैं, जैसे कि इमोशंस हो गए, मोटिवेशंस हो गए। और इन्होंने बताया कि इमेजलेस थॉट को भी स्टडी किया जा सकता है, हमेशा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये पहले हो गए। इसी में ही इंपॉर्टेंट एक नाम निकल के आता है, वो है हमारे अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा इज आल्सो कॉग्निटिव पे ही काम करते थे। इन्होंने भी यही कुछ बात बोली थी। इन्होंने बस इतना बोला था कि जो भी हम कुछ सीखते हैं वो सीखना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ओके। हम अपने इंटरनल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम सोशल लर्निंग भी करेंगे, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी करेंगे, इस तरीके की प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यू मेंटलिज्म, है ना। इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे जब लर्निंग चैट पर आएगा। तो इस तरीके से तीन पैराडाइम हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यू स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे नॉर्म चॉम्स्की और जीन पियाजे आएंगे। द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर की तरह काम करेगा। द नेक्स्ट वन इज न्यू मेंटलिज्म, जो इमेजलेस थॉट की बात करेगा, जो इस बात को मना करेगा कि एसोसिएशन जैसा कुछ भी होता है,
ठीक है। सो इन दिस वे कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, और फिर ये साइकोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगी।